Now let us discuss about glutamate. It is a main excitatory neurotransmitter. It's like accelerator of the brain. It is most important excitatory neurotransmitter, and its location where it is released in the brain is cortex, basal ganglia, and the sensory pathways. Let us see about the synthesis of glutamate. It is produced from two main sources, that is from Krebs cycle and in the glial cells. In Krebs cycle, glucose it goes into Krebs cycle, then forms oxoglutarate, and then it forms glutamate. Then talking about in the glial cells they convert the glutamate into glutamine, and glutamine it travels back to the neurons and becomes glutamate. So glial cells, they are the supportive cells. Okay, take this as G for glial cells, they are supportive, and this is a neuron body. So this is converting the glutamate into glutamine, and glutamine it travels back to the neurons and becomes glutamate. Okay, glial cells are like boys in the tennis court, returning to the neurotransmitter for reuse. Returning the neurotransmitter for its reuse. I don't understand ball boys in tennis. Okay, so ball boys, what are ball boys in tennis? Returning. Okay, the glutamate it is returning for its reuse, and there are glutamate receptors. 5 are identified. There are inotropic receptors and metabotropic receptors. NMDA, AMPA, kainate, open ion channels, fast they are, and metabotropic are slow, AP4 and ACPD receptor. These are the G proteins. Okay, and these are ion channels. NMDA receptor. What does NMDA stand for? N-methyl D-aspartate. Okay, so aspartate, N-methyl D-aspartate. So that is nothing but an amino acid which has COH group, which has NH2 group, which has R, and which has H. So it is an N-methyl receptor, and here I think there is a methyl group, CH3 group, and there is H2 only one. So it's something like this, N-methyl D-aspartate, dextrorotatory aspartate, I think. And these are the receptors that are crucial for memory formation, and these are receptors, okay. These are the ion channels. They are crucial for memory formation, synaptic plasticity, learning, epilepsy, ischemic brain damage. Its structure is a ligand-gated ion channel composed of NR1 and NR2 subunit. When activated, channel opens for calcium and sodium. Calcium entry triggers intracellular signaling. So this is the receptor. It has two units, NR1 and NR2. And when this is activated, it will channel opens for calcium. Calcium will go in. There is negative, and also sodium will go in. So it will become depolarized, and there will be calcium entry triggers intracellular signaling, and there will be memory formation, and this excitation occurs due to depolarization. Initially we had seen the inhibition, it was acting because of that hyperpolarization. Now pathologic importance, let us see. Now if overactivation, these ligand gated NMDA receptors are overactivated, then more calcium, then what will happen? More calcium, more sodium, more depolarization, and more intracellular signaling. It will become excitotoxicity, and it is seen in stroke, brain ischemia, and neurodegeneration. Excitotoxicity occurs in stroke, brain ischemia, neurodegeneration. Too much calcium entering, that will cause cell का death. So all these are nothing but सेल का डेथ ना. कैल्शियम बहुत बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो रहा है, तो ये सब हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन इश्यूमिया हो जाएगा, न्यूरोडीजनरेशन. ठीक है. Now let us go fast. Let us enter synapse inside hippocampus where learning and memory are actually happening. So we go to the synapse where learning and memory are happening. Imagine a presynaptic neuron releasing glutamate while you're studying for your exam. Okay, this is a very beautiful condition that we're seeing. So it is what? It is a presynaptic neuron. It is releasing glutamate and you're studying for an exam. What happens at the postsynaptic neuron determines whether that memory becomes strong or the neuron gets damaged. What happens at the postsynaptic neuron? Okay, so let us see NMDA receptor. Think of NMDA receptor as a complex ion channel door that only opens when multiple conditions are satisfied. Important binding sites on the NMDA receptors: the glutamate binding site and the glycine modulatory site. Importantly, now glutamate binding site is a primary activator. When glutamate binds, the receptor wants to open, and glycine modulatory site glycine must also bind for the receptor to function. Without glycine, glutamate cannot activate the NMDA. Okay, so endogenous antagonist is kynurenic acid from the glial cells. We had seen there were these particular glial cells, and they were releasing kynurenic acid, which is an endogenous antagonist for the NMDA receptor. For the NMDA receptor, it is an antagonist blocker. This from glial cells. That means glial cells regulate synaptic transmission. Okay. If it is an antagonist, then ion channel will not open. Ion channel will not open, then there will be no depolarization, no excitation, so synaptic transmission will be inhibited. Polyamine regulatory sites. There were four types of binding sites on the NMDA receptor. Those are glutamate binding, glycine modulatory, and polyamine regulatory site, and PCP or ketamine site inside the channel. Now let us see polyamine regulatory site. Polyamines like spermine, spermidine, they facilitate the NMDA opening. Okay. They are regulatory, spermine and spermidine. Glycine का होना जरूरी था for the receptor to function. Glutamate तो primary चाहिए हमें so that channel open हो जाए. और ये जो regulation है ना, जो polyamines है ना, they like sperm, they facilitate the NMDA opening. So and electrolyte blocks this side. This particular side is blocked by that. So NMDA opening. So इसका जो opening है ना, इसका जो lid है ना, ये खुलेगा ही नहीं, बंद रह जाएगा. It will block due to electrolyte. Now what is PCP or ketamine site? PCP का full form देखना पड़ेगा इसके अंदर. हाँ, phencyclidine. Phencyclidine is the PCP और ketamine site inside the channel. Channel के अंदर है वो. Drugs bind inside the open channel and block it. Okay. तो ये जो कुछ drugs होते हैं जैसे कि ketamine, PCP, phencyclidine और memantine और diazoxypin, ये जो है ना, ये अपना चैनल है ना, उसके अंदर जाके ये बाइंड हो जाते हैं और ये जो चैनल है ना, उसको ब्लॉक कर देते हैं. सो दैट मैकेनिज्म इज ओपन चैनल ब्लॉक. तो जो चैनल ओपन है उसको ब्लॉक करेंगे और कैल्शियम एंट्री नहीं होगा. और इसका एक ये जो मेमेंटाइन है ना, मेमेंटाइन भी अगर ब्लॉक करेगा तो इसके अंदर कैल्शियम नहीं आएगा, एक्साइटेशन नहीं होगा. तो ये जो है ना, अल्जाइमर्स डिसीज में इसको देते हैं. अल्जाइमर्स मतलब क्या होता है? अल्जाइमर इज नथिंग बट डिमेंशिया. सो डिमेंशिया को करने के लिए हमें क्या चाहिए? Alzheimer. I have to understand what Alzheimer is. Okay, let's see. Now there is another one. How can I forget? There are 6 total. Magnesium voltage dependent block और zinc site और non NMDA receptors है ना, ये हैं. These are the kainate receptor, AMPA receptor, and and metabotropic glutamate receptors. These are the G protein coupled receptors. एक मोड metabotropic थे और दूसरे थे जो कि fine. Now let's go fast. Now we maintain in the Alzheimer's disease. I have to see Alzheimer's.
progressive irreversible brain disorder and most common cause of dementia that destroys memory, thinking, and eventually daily functional abilities. So memory it is destroying, and we are giving memantine in that, so it will block it and not let that happen. So there will be no excitation. I don't understand. I'll see that. A magnesium voltage dependent block at the resting membrane potential. Magnesium sits inside the NMDA channel. Magnesium यहाँ पे बैठ जाता है, block करता है इसको. ये resting RMB पे है. But when the neuron is depolarized, magnesium is expelled and the channel opens. Okay. So neuron एक दूसरे को ऐसे धक्के मार के depolarize करते हैं और तब ये magnesium निकल जाएगा, ये channel open हो जाएगा. So NMDA activation requires glutamate, glycine and depolarization. You know glutamate प्राइमरी एक्टिवेटर है, ग्लाइसिन मॉड्यूलेटरी साइट होता है. ग्लाइसिन है तो रिसेप्टर फंक्शन करेगा. बाद में क्या चाहिए? डीपोलराइजेशन चाहिए. बाद में पॉलीमाइन भी इसको खुला कर देगा और कीटामाइन ये तो ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है. और मैग्नीशियम वोल्टेज डिपेंडेंट ब्लॉक, तो मैग्नीशियम तो ब्लॉक कर रहा है, तो इसको चाहिए क्या? इस औरत को इसको चाहिए ग्लूटामेट, ग्लाइसिन और चाहिए डीपोलराइजेशन. ओके. और जिंक क्या करता है? जिंक बाइंड्स नियर द माउथ ऑफ द चैनल, या माउथ यहाँ पे बाइंड करेगा और इनहिबिट्स द एनएमडीए एक्टिविटी. ठीक है. So here you can see the NMDA receptor are a complex ion channel that only opens when multiple conditions are satisfied. It is such a smart gatekeeper. इतना चोचले है इसके, ठीक है. Now there is non-NMDA receptor. These mediate fast excitatory transmission by these AMPA receptors and kinase receptors. We had seen the list of all these receptors. They were what? Glutamate receptors, 5 types, 3 inotropic, 2 metabotropic, and among this we have seen NMDA. Let us see. And this was NMDA receptor. These two are non-NMDA, and these are also inotropic receptors, AMPA and kinase. And metabotropic we will see later. First of all, focusing on AMPA. What does AMPA stand for? AMPA receptor full form. So it is amino hydroxy methyl. Okay, such a big name. Amino hydroxy methyl isoxazole propionic acid. Oh my goodness, such a bakwas name it has got. So it is first of all A for amino, M for methyl, P for propionic, and A for acid. So that's quite easy. Amino methyl propionic acid. I will remember it as amino methyl propionic acid. Okay. So this function is rapid. Okay, rapid and Na plus influx करें, fast depolarization करें. Pentamer made of glutamate receptor 1 to 4 subunits. 1 to 4 subunits बोल रहा है, pentamer है, ठीक है, तो डबल होगा. तो special point if glutamate receptor 2 subunit is absent, then receptor becomes permeable to calcium. अच्छा जी, अच्छा. तो पहले तो ये basically सोडियम इन्फ्लक्स कराता है, लेकिन अगर ये सेकंड वाला absent होगा तो calcium भी लाएगा. और agonist है इसके MPA और quisqualate, ठीक है. और antagonist है CNQX. Kinase receptor it is also pentameric. Subunits are glutamate receptor 5 to 7. यहाँ पे चार देख लिया, अभी 5 to 7 और kinase receptor काइनिक एसिड 1 to 2. अच्छा, इसका agonist है काइनेट, डोमोएट और antagonist NBQX. QX कॉमन है, ऊपर CN है, नीचे NB, ऊपर CN है, नीचे NB और इसका डोमोएट और quisqualate, ठीक है. वो भी यहाँ पे रहता है, तो चलेगा. अब नेक्स्ट है metabotropic receptors. ये है ना 7 पास वाले receptors हैं जिनके यहाँ पे G protein अटैच होता है. So these are not angel. Then the glutamate it activates the G protein. Then messenger cascade occurs. Then functions like synaptic transmission and synaptic plasticity occurs. Glutamate metabotropic glutamate receptor 5 linked with cocaine addiction behavior. अच्छा, so अगर ये wait हाँ, ये मेटाबोट्रॉपिक है ना, इसके अंदर मैंने ना दो लिखे थे, AP4 और ACPD रिसेप्टर्स. दीस एक्टिवेट द जी प्रोटीन्स. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्टिवेशन ऑफ द मेटाबोट्रॉपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर 5 इट इज लिंक्ड विद कोकेन एडिक्शन बिहेवियर. ओके, व्हाटएवर. और फंक्शनल इंटरेक्शन ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, इतने सारे ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स देखिए, NMDA, AMPA, विद काइनेट, देन मेटाबोट्रॉपिक. इनमें इंटरेक्शन कैसा दिखेगी? टू आउटकम्स है बेसिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, जिससे कि लर्निंग होगा, और एक्साइटोटॉक्सिसिटी, इतना एक्साइट करोगे कि उसको थका दो और देयर विल बी डेथ, ठीक है. तो सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी देखते क्या है. सो रिपीटेड स्टिमुलेशन हो रहा है, न्यूरॉन स्ट्रेंथन देन देयर कनेक्शन, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, LTP. इट इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग लर्निंग दैट व्हेन यू आर स्टडीइंग रिपीटेडली देन देयर विल बी रिपीटेड स्टिमुलेशन, लाइक हथौड़ा मार मार के स्टिमुलेट कर रहे हो और वो न्यूरॉन का जो कनेक्शन इतना स्ट्रांग बन रहा है, उसको हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन. सो इट्स एफिशिएंट लॉन्ग लास्टिंग इंक्रीज इन द सिनेप्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन. हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा बार स्टिमुलेट कर रहे हो, और लॉन्ग लास्टिंग, और जो सिनेप्टिक जो स्ट्रेंथ है ना उसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग इंक्रीज, मतलब वो सिनेप्टिक स्ट्रेंथ ज्यादा टाइम के लिए चलनी चाहिए. दैट इज दैट. ओके, दैट occurs mainly in the hippocampus we know. Now let's see its mechanism. It's such a beautiful story while learning. This is the most beautiful thing we learn. Now in the normal state, like it is polarized -17 millivolt, glutamate is released, okay, from the neuron. Like then only AMPA receptors activate. Then effect sodium enters small depolarization. Then NMDA is still blocked by magnesium. वेट, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम है ना, रेस्टिंग स्टेट में मैग्नीशियम यहाँ पे फंसा रहता है NMDA चैनल में और उसको ब्लॉक करे रखता है इस NMDA इस रिसेप्टर चैनल को. लेकिन जब न्यूरॉन डीपोलराइज होता है, ये मैग्नीशियम को धक्का मार के भेजा जाता है चुपचाप से ऊपर के, इस करके ये कैल्शियम वगैरह आ जाते हैं और इसका डीपोलराइजेशन होकर हमारा एक्साइटेशन वाली चीज़ शुरू हो जाती है. सो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने कि पोलराइज स्टेट में न्यूरॉन है, ग्लूटामेट रिलीज हो गया है, अब AMPA रिसेप्टर्स पहले तो एक्टिवेटेड है, MPA के साथ ये भी ऐसे चैनल ये सोडियम काइनेट करेगा, तो इससे थोड़ा सा डीपोलराइजेशन होगा. लेकिन जो NMDA अभी भी इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे मैग्नीशियम इसको ब्लॉक करे रखता है, तो बाद में रिपीटेड स्टिमुलेशन होगा, जैसे कि AMPA का एक्टिवेशन कंटिन्यू होएगा, ठीक है. AMPA रिसेप्टर का एक्टिवेशन कंटिन्यू होएगा, फिर मेम्ब्रेन डीपोलराइज -70 से -40 होगा क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, सोडियम आ गया. नाउ द मैग्नीशियम ब्लॉक इज रिमूव्ड और NMDA ओपन होगा और ये कैल्शियम अंदर जाएगा. कैल्शियम एक्ट्स एज सेकंड मैसेंजर. पहले तो ना इसका ये जो अपना न्यूरॉन है ना, इसको बना डालते हैं, ठीक है. ये दूसरा न्यूरॉन, ठीक है. ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूटामेट रिलीज हो गया, देन यहाँ पे इसका पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा, तो इसके पास जाएगा और इसका ग्लूटामेट रिसेप्टर कौन सा बताया इन्होंने सबसे पहले, AMPA रिसेप्टर बताया गया, ठीक है. तो वो सोडियम अंदर गया, इसके अंदर गया सोडियम, लेकिन उसने छोटा सा डीपोलराइजेशन करा और इसके यहाँ पे ना दूसरा एक था चैनल, उसका नाम क्या था, इसका नाम है NMDA रिसेप्टर और इसका नाम है AMPA रिसेप्टर, ठीक है. तो ये AMPA के पास जाता है तो थोड़ा सा सोडियम आता है, लेकिन इसके अंदर मैग्नीशियम अभी भी चिपका है. लेकिन जब बार बार रिपीटेड स्टिमुलेशन ग्लूटामेट का आएगा तो AMPA रिसेप्टर बार बार एक्टिवेट होगा, तो इससे क्या बार बार सोडियम अंदर आएगा, तो -70 से -40 मिलीवोल्ट का ये पोटेंशियल बन जाएगा. और यहाँ से जो मैग्नीशियम हट जाएगा तो NMDA रिसेप्टर ओपन हो जाएगा, जिससे कि कैल्शियम एंटर हो जाएगा और कैल्शियम सेकंड मैसेंजर है, ठीक है. तो कैल्शियम किसका एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज C, मतलब ऐसा फॉस्फेट का ट्रांसफरर जो कि कैल्शियम पर डिपेंडेंट है.
और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो कैल्शियम, तो ये जो पर्टिकुलर हमारा एनएमडी रिसेप्टर है, इसमें इसने क्या किया, इसके अंदर है ना हमारे ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम डाल दिया। अब ये कैल्शियम अंदर जाके प्रोटीन काइनेज सी और एनओएस नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को एक्टिवेट करेगा, फिर वहाँ से रेट्रोग्रेड सिग्नलिंग होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ट्रैवल्स बैकवर्ड्स टू प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन। तो यहाँ से अब ये जो है ना कलर चेंज कर लेते हैं अभी देखते हैं हम, ठीक है, ब्लू कलर। अब यहाँ पर ये बैकवर्ड ट्रांसफर होगा किसका, नाइट्रिक ऑक्साइड का। यहाँ पे जो कैल्शियम आया था ना, इस कैल्शियम ने यहाँ पे एनओएस नॉस को एक्टिवेट किया है, तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना वो बैकवर्ड ट्रांसपोर्ट होकर प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन पे आ रहा है, और उससे नाइट्रिक ऑक्साइड के आने की वजह से जो है ना ये ग्लूटामेट बार बार रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आने से जो है ना बार बार ग्लूटामेट का एंट्री करा रहा है वो, ठीक है। नाउ सिनेप्टिक स्ट्रेंथनिंग इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन काइनेज सी। कैसे, अब ये कैल्शियम अंदर गया था, इसने एनओएस को भी एक्टिवेट किया था, जिससे कि ग्लूटामेट फाइनली बढ़ गया था, और इसने प्रोटीन काइनेज सी को भी एक्टिवेट किया था, जो कि क्या करेगा, एएमपी प्रोटीन काइनेज सी, काइनेज मतलब फॉस्फेट का ट्रांसफर करेगा, और कोई से तो भी प्रोटीन पे ये फॉस्फेट का होगा। तो ये जो एएमपी रिसेप्टर है इट इज नथिंग बट प्रोटीन। तो इस रिसेप्टर ये जो आयन चैनल वाला रिसेप्टर है ना, इसको ये फॉस्फोराइलेट करेगा, कौन, प्रोटीन काइनेज सी, और इसको फॉस्फोराइलेट करेगा, और इसके जो एएमपी रिसेप्टर है ये भी बढ़ाएगा। तो ठीक है, इसने कितनी अच्छी काम, कितने बढ़िया काम किया इन्होंने कि देखो ये ना इसके हमारे रिसेप्टर भी बढ़ाओ, यहाँ से ग्लूटामेट भी बढ़ाओ, ताकि स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा, ताकि बार बार मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है। सो एक्टिवेट्स आल्सो दिस पीकेसी एक्टिवेट्स द जीन ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जीन ट्रांसक्रिप्शन होकर क्या होगा, मोर सिनेप्सिस फॉर्म और मेमोरी बिकम स्ट्रॉन्गर। सिनेप्स का मतलब क्या होता है कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो अगर प्रोटीन काइनेज सी आके जीन ट्रांसक्रिप्शन को भी अच्छा कर रहा है, तो ऐसा कौन सा जीन बना रहा होगा, ऐसा जीन जो कि हमारे रिसेप्टर्स को बनाने वाला जीन। सो अगर रिसेप्टर्स बढ़ेंगे तो मोर ग्लूटामेट आएगा, तो इससे क्या होगा कि मोर सिनेप्सिस आर फॉर्म, मेमोरी बिकम स्ट्रॉन्गर। तो दो न्यूरॉन में की जो मेमोरी है ना, उन दोनों में की जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ रही है। और अब ये देखा हमने लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट, अब नेक्स्ट देखना हमें लॉन्ग टर्म डिप्रेशन वाला। हमने सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, मेमोरी फॉर्मेशन और ये देखा है। अब हम और इसका डेफिनेशन क्या था, लॉन्ग लास्टिंग इंक्रीज इन साइनेप्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन। अब लॉन्ग टर्म डिप्रेशन आसान होगा हमें समझना, इट्स ऑपोजिट ऑफ द एलटीपी, अकर्स विद लो फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन, कम टाइम्स देते हैं। व्हाट इज इट, टू रिमूव अननेसेसरी सिनेप्सिस, मतलब ऐसे दो न्यूरॉन्स उनके बीच का जो मतलब स्ट्रेंथ जो बढ़ा है उसको रिमूव करना है, अननेसेसरी जहाँ पे कनेक्शंस बने हैं उसको रिमूव करना है। एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी रिफाइनमेंट, कि अगर जब मैंने कोई क्वेश्चन लगाया उसको बार-बार मैं गलत कर रही हूँ, तो उस अननेसेसरी सिनेप्स को रिमूव करना जो है ना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी रिफाइनमेंट, सो दैट मैं वो गलती वापस ना करूँ। देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड एक्साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। एक्साइटोटॉक्सिसिटी यानी कि व्हेन लर्निंग सिस्टम टर्न्स डेंजरस, ठीक है। और ये सिस्टम डेंजरस कब बन जाती है, when there is neuronal death, when glutamate stimulation becomes इतना excessive कि too much NMDA activation हो रहा है, कोई NMDA उसका too much activation, excessive calcium बढ़ जा रहा है, this triggers the proteases, lipases, reactive oxygen species, nitric oxide, polyamines और arachidonic acid। और हमें पता है कि प्रोटीएज बढ़ा तो प्रोटीन का लाइसिस होगा, लाइपेज बढ़ा तो अच्छे वाले जो माइलिन वाले लिपिड्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आ गए तो हमें पता है कि ये ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये भी सेल को मार देंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड भी मार देगा, और एराकिडोनिक एसिड, पोलियामाइंस, ये सब है ना और डैमेज द न्यूरॉन, एज अ रिजल्ट देयर इज न्यूरो डिजनरेशन। और द डिसीजेस दैट कॉज्ड बाय द एक्साइटोटॉक्सिसिटी आर स्ट्रोक, पार्किंसन डिसीज, अल्जाइमर डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ओके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आईएनआईसीटी में पूछते हैं, और रेटिनल डिजनरेशन। सो एक्साइटोटॉक्सिसिटी यानी ये जो अपने जो रिसेप्टर्स है मेम्ब्रेन पे, इन पे इतना ज्यादा एक्टिवेशन हो रहा है, इतना ज्यादा कैल्शियम आएगा, उससे क्या होगा कि ये सारे ब्रेक डाउन करने वाले जो एंजाइम्स है, मॉलिक्यूल्स है, एक्टिवेट ट्रिगर हो जाएंगे, जिससे कि ये जो अपना न्यूरॉन है ना यही मर जाएगा। और ये सब अगर न्यूरॉन मर रहा है तो हमारा मेमोरी स्ट्रेंथनिंग नहीं होगा, तो डिमेंशिया, मेमोरी लॉस होगा, ये कैसे अल्जाइमर्स के केस में। और ऐसे न्यूरॉन मर रहे हैं इन सारी चीजों में, हमारा जो न्यूरॉन में से हमारा जो नॉर्मली पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज था वो नहीं हो पा रहा है इसमें, ठीक है। रेटिनल डिजनरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि रेटिना में ना सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पे, अगर वो हो गए तो क्या दिखाई नहीं देगा हमें, ठीक है। नाउ क्लिनिकल कोरिलेशन, द ड्रग यूज्ड टू ब्लॉक द एक्साइटोटॉक्सिसिटी। नाउ लेट्स सी कि क्यों हमने अल्जाइमर्स में मेमेंटिन क्यों दिया था, क्योंकि अल्जाइमर्स देखो न्यूरो एक्साइटोटॉक्सिसिटी से हो रहा है, इतना ज्यादा एनएमडीए का एक्टिवेशन हो रहा है, कैल्शियम बढ़ रहा है, जिससे कि ये सारी चीजें ट्रिगर हो रही है, न्यूरॉन खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, बाय यूजिंग अ ड्रग जिसके बारे में हमने अभी यहाँ पे देखा था, या नाउ दिस पर्टिकुलर ड्रग इट विल बाइंड इनसाइड द एनएमडीए और इसको ब्लॉक करेगा, और अगर वो ब्लॉक कर रहा है तो कैल्शियम एंट्री होगा ही नहीं, कैल्शियम एंट्री नहीं होगा, तो हम इस अल्जाइमर्स को ट्रीट करने के लिए मेमेंटिन ड्रग यूज करते हैं, जो क्या करेगा, इस एनएमडीए रिसेप्टर है ना वहाँ पे वो अंदर जाके इस पर्टिकुलर रिसेप्टर को है ना ब्लॉक करेगा, सो दैट है ना इसके अंदर से ऐसे कैल्शियम आएगा ही नहीं, ठीक है। कैल्शियम नहीं आएगा तो प्रोटीएज ये सारे सब अच्छे से रहेंगे, ट्रिगर नहीं होगा, अपना न्यूरॉन भी अच्छे से रहेगा। सो मेमेंटिन एनएमडीए चैनल का ब्लॉकर है, इट्स यूज्ड इन अल्जाइमर डिजीज, इट स्लोज द मेमोरी लॉस जो हो रहा है न्यूरॉन के डिजनरेशन से उसको स्लो डाउन करेगा, ओके। ये सारे क्वेश्चन हम एंड में देखेंगे, लेकिन मेरे को देखना है कि मैंने ये सब पढ़ा है या नहीं खुद को। सस्टेनेबल पोलराइजेशन, लर्निंग स्टिमुलेशन, ये सारी चीजें ना ये सेम एक ही बात बोल रहा है, ठीक है। Metabotropic receptor activation, glutamate activates the metabotropic receptors, these produce second messengers, these further increase calcium from endoplasmic reticulum, PKC activation, increased calcium activates PKC, it does two things, okay, phosphorylation और इसका एक्टिविटी बढ़ाता है, जिससे synaptic transmission strong होता है, nitric oxide formation, calcium activates, calcium आके ये NOS को भी एक्टिवेट करता है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड L-arginine को नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड का रेट्रोग्रेड सिग्नलिंग हुआ तो ग्लूटामेट रिलीज बढ़ता है, जो सिग्नल स्ट्रॉन्गर बन जाता है। अब ये जो पीकेसी है ना, प्रोटीन काइनेज सी, जो कैल्शियम आने के कारण एक्टिवेट हुआ था, तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा, जैसे कि साइनेप्टिक प्रोटीन्स, डेंड्राइटिक स्पाइन, साइनेप्टिक कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, दो एलटीपी होगा, तो लर्निंग बिकम्स परमानेंट। कुछ लर्निंग में आए या ना आए, लेकिन ये जो पाथवे है ना एनएमडीए वाला, कैल्शियम वाला, ठीक है, कैल्शियम में पीकेसी वाला, पीकेसी से क्या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाला, और ये सब साइनेप्टिक प्रोटीन बनने वाला, और जिससे एलटीपी हो रहा है, ये सब तो याद होना चाहिए, ठीक है। फिर एक्साइटोटॉक्सिसिटी कैसे हो रही है कि स्ट्रोक, ट्रॉमा, हाइपोक्सिया में ग्लूटामेट रिलीज एक्सेसिव हो रहा है, ठीक है। तो एनएमडीए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एनएमडीए का कैल्शियम इनफ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि वो सारा increase glutamate release क्योंकि वो NOS को एक्टिवेट करेगा, नॉट प्रोटीज एक्टिवेशन, लाइपेज एक्टिवेशन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, नाइट्रिक ऑक्साइड ओवर प्रोडक्शन, सो NO और ROS तो पर ऑक्सी नाइट्राइट फ्री रेडिकल जो कि न्यूरॉन का डिस्ट्रॉय करेंगे। एडिशनल टॉक्सिक मेम्ब्रेन्स, एडिशनल टॉक्सिक मैकेनिज्म्स आर आल्सो पोलियामाइन इंक्रीज, एट्रियोनिक एसिड इंक्रीज, इनहिबिशन ऑफ ग्लूटामेट अपटेक, ऑल एम्प्लीफाई द न्यूरॉन डैमेज। और कौन-कौन से डिसीजेस में होता है हमने देखा है, तो प्रोटेक्टिव ड्रग्स कौन-कौन से, तो नाइट्रोइंडाजोल, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को इनहिबिट करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा, ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा। मेमेंटिन, ठीक है, ये दो ड्रग्स काफी अच्छे, इनके नाम अच्छे से याद रखना, नाइट्रो इंडाजोल और मेमेंटिन, ठीक है। और मेमेंटिन एनएमडीए चैनल को ब्लॉक करेगा तो कैल्शियम अंदर नहीं आने देगा, कैल्शियम नहीं आएगा तो पीकेसी और एनओएस नहीं होंगे, तो फिर ग्लूटामेट भी नहीं होगा और जेनेटिक भी चीजें नहीं होंगी, तो ये न्यूरॉन के डैमेज को है ना बचा देगा। सो इट इज यूज्ड इन अल्जाइमर्स डिसीज। फिर हमको पेप्टाइड्स देख लें, नाइट्रिक ऑक्साइड देख लें, और ये बाकी चीजें बहुत ईजी है, और फिर टाइप्स ऑफ न्यूरोसिस हो गए तो चैप्टर खत्म।